Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to teach you a new chapter, that is polymers. Fine, so let us start with this chapter without any delay. First of all, this chapter polymers is a very easy chapter. Okay, very easy in the sense here the questions in the board exams related to this chapter will be very precise, concise. Okay, they will be strictly on the basis of your NCERT books only, and this is a scoring chapter, easy, and it has daily, means this chapter is related to our day-to-day life, means applications of these certain things in our day-to-day life. Okay, therefore this is an interesting chapter also and scoring chapter as well. So let us start it. Fine. So polymers, this polymers is made up of two words itself, poly plus mers. Okay, where poly means many. Fine, poly का मतलब होता है many, and this mers means units or parts. Okay, so polymers in general, it means many units or parts. Many units when combined together, they are called as the polymers. Fine. So we can say when n number of small units, ठीक है, जब n number इसलिए बोल रहे हैं बहुत सारे, there is not a precise number, n number of small units they combine together, they form a bigger unit, isn't it? जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा यूनिट. एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स. हम उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. तो जब n नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके, दे कंबाइन, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? सो दिस बिगर यूनिट और मैक्रो मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज द पॉलीमर. ठीक है, तो ये जो स्मॉल यूनिट्स या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कंबाइन टुगेदर टू गिव अ बिगर यूनिट. फाइन, दीज स्मॉल यूनिट्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. ठीक है, मोनो यानी सिंगल, मर्स मीन्स यूनिट्स. ओके, एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट और अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द पॉलीमर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मोनोमर्स क्या होते हैं? दे आर द बेसिक यूनिट्स, सिंपल यूनिट्स विच कंबाइन टुगेदर टू गिव अ लार्ज यूनिट, ओके, विच इज कॉल्ड एज द पॉलीमर्स. नाउ दिस प्रोसेस बाय विच monomers are getting converted to polymers by chemical reactions or chemical composition are called as, chemical combination are called as the polymers. Fine. So अभी ये जो monomers होते हैं वो जब combine होंगे तो वो polymers बनाते हैं, और ये जो process होता है, the process by which this monomers are combining to give polymers is called as the polymerization process. Okay, so let us see one example for this. One example I am taking, for example, polythene. Okay, now see this word. Poly means many, and ethene, you know, C2H4. The formula of ethene is C2H4. So many C2H4 units will combine together and they will form polyethene. Okay, so let me show you the reaction. हम इसका chemical reaction देखते हैं. अभी इसका देखो, n number of C2H4, हमें पता है ethene ये फॉर्मूला होता है, n number of CH2 double bond CH2, that is the ethene units, दे पॉलीमराइज. ठीक है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन. सो ये पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, पॉलीईथीन. अब देखो, पॉलीथीन बनने के लिए ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, और हमें पता है दैट पाई बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली. ठीक है, तो ये यहाँ से पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा.
अब कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये दोनों साइड और यूनिट्स है, इधर भी एक यूनिट आ जाएगी, इधर भी एक यूनिट आ जाएगी, ऐसे पूरा लॉन्ग चेन बन जाता है. ओके, एंड टू शो दैट both the sides the chain is continuing, we'll write like this: CH2 single bond CH2. Okay, and both the side the bond is continuing means many units are coming and combining. So ये क्या है? ethene. N number of ethene units are combining together to form what? Polyethene. Is that clear to all of you? So this is the example, one example of a polymer. यहाँ पे पॉलीमर क्या है? पॉलीइथीन है. ओके, और मोनोमर क्या है? इथीन यूनिट्स हैं, क्योंकि इथीन स्मॉल जो इथीन यूनिट्स होती हैं वो आपस में कंबाइन करके पॉलीइथीन बनाती हैं. ठीक है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में बोली ये बात, दैट दीज पॉलीमर्स हैव वाइड एप्लीकेशंस, एंड एक्चुअली यू नो ये दिस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पॉलीमर्स एक रेवोल्यूशन आ गया था इंडस्ट्रीज में. एंड वी यू नो वी आर यूजिंग, बिकॉज वी यूज सेवरल पॉलीमर्स इन आवर डे टू डे लाइफ टू मेक आवर लाइफ easy, comfortable and convenient. Okay, like for example the clothes we wear, जो भी ये टेक्सटाइल्स वगैरह होते हैं ये सब पॉलीमर्स होते हैं मोस्ट ऑफ ऑल. देन मशीन पार्ट्स वगैरह में हम जो भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, देन यू नो दीज स्विचेस एक्सेट्रा. फिर आप घर में प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो. एवरीथिंग इज़ व्हाट? पॉलीमर. एंड यू नो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जिनको हम बायो पॉलीमर्स भी बोलते हैं, जो हमको सर्वाइव करने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी नोइंग, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इजंट इट? सबको पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं जो हमारे लिए चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज योर डीएनए, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ये सब और नहीं, और कुछ नहीं. व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर द पॉलीमर्स. तो जो पॉलीमर्स हमारे बॉडी में होते हैं, or we can say the polymers which are present in the living organism and which help them to survive are called as what? Biopolymer. Okay, and these are other polymers. We will be going through many polymers as examples in this chapter. Like for one is polyethylene itself, which we are using for convenience in our day-to-day life. Now next we will see classification of polymer. Now see, the most common classification first we will see, it is on the basis of types of monomer. Okay, so we are going to now classify the polymers. The first one is on the basis of types of monomer. Okay, now on the basis of type of monomer, the polymers are classified into two types. One is homopolymer and the second one is copolymer. ठीक है, homopolymer and copolymer. Okay, now this homopolymer and copolymer are on the basis of what? On the basis of types of monomers या monomeric units. Okay, चलो, now homopolymer. Again the name suggests, homo means same, polymer means you know what is polymer. So by this word you understand homo means same. Okay, so that means those polymers which are formed by same monomeric unit. same का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं सिंगल टाइप ऑफ, सेम या फिर सिंगल. ओके, जो एक ही टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर. सी फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियसली एज वी हैव सीन पॉलीइथीन, उसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या थी? सिर्फ इथीन. सो दैट वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर होमोपॉलीमर. पीवीसी. ठीक है, पीवीसी पाइप्स सबने सुना होगा नाम, इजंट इट? बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम. पीवीसी द फुल फॉर्म इज पॉली विनाइल क्लोराइड. ओके, PVC that is polyvinyl chloride. देखो अब n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड यूनिट्स. ठीक है, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड है. n नंबर ऑफ ये विनाइल क्लोराइड यूनिट्स जब मिलते हैं या आप बोल सकते हो पॉलीमराइज करते हैं, देन व्हाट दे फॉर्म? PVC. यहां पे भी ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा. ठीक है, CH
Cl हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं, ये कार्बन भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इधर बाइंड करेगा, ये भी। सो N, यहाँ पे N लगाने का मतलब है दोनों साइड पे यूनिट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। आप वैलेंसी देख सकते हो कार्बन की, द वैलेंसीज आर गेटिंग कंप्लीटेड, ओके। तो ये जो है पॉलीमर, ये क्या हो गया, PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। पहला एक और एग्जाम्पल हमने देखा था पॉलीइथीन, हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट जस्ट नाउ यू रिमेंबर व्हाट आर होमोपॉलीमर्स। Homopolymers are the polymers which are formed from single unit, ठीक है, single type of monomeric unit. Now let us move to the second one, copolymers. Now copolymers means, co means two. Fine, they are formed by combination of two or more monomeric यूनिट। बेसिकली ज्यादातर दो ही होते हैं, पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो को-पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स, ओके। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर इट, नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 इज द कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिट। अब ध्यान से देखना है इसका, नायलॉन 66 के यूनिट्स, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, लेट मी रब दिस, okay, fine. So the two units of nylon 66 are hexamethylene diamine and adipic acid, ठीक है। नाउ आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, द स्ट्रक्चर इज दिस, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड, ओके। So these are the structures of hexamethylene diamine and adipic acid, and hexamethylene diamine and adipic acid are the monomeric units of what, nylon 66. See, let us see how they combine. देखो अभी NH, यहाँ पे से NH2 में से एक H निकलता है, ठीक है, that H is removed and that's why I have written the bond here. एक H है, CH2 6, फिर से NH, COH में से ये OH जाएगा, ठीक है, तो CO, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, CH2 4, फिर ये यहाँ पे से भी OH जाएगा, एंड टू कंप्लीट द बॉन्ड इट विल कंबाइन लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज व्हाट, नायलॉन 66, ओके, विच इज अ पॉलीमर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कोपॉलीमर, ठीक है। नायलॉन 66 एक एग्जाम्पल है, विल सी मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर यू कैन सी दैट टू डिफरेंट यूनिट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, एंड यहाँ पे वापस से ऐसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे एडिपिक एसिड है, अब वापस हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की यूनिट आ जाएगी, फिर एडिपिक एसिड, ऐसे पूरा दोनों साइड, आइदर साइड में ये मीन्स लॉन्ग इलोंगेट होता जाएगा ये स्ट्रक्चर, एंड अ लॉन्ग पॉलीमरिक चेन विल बी obtained, okay. So this is the classification on the basis of monomer, homopolymer and copolymer. So children, you can give me some more examples of homopolymers and copolymers in the comment section. Further classification of polymers we will be seeing in our next video. Stay tuned, go through the basics very well.